Sainam children, take care of yourself. How are you? Fine, Ma'am, we ma'am. are fine. We are fine, How ma'am. are you, We ma'am? all fine, ma'am. How are you, ma'am? I am also fine. Okay. So today we will start with presentations. As I told you, na, in our next class we will start Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको मैंने चॉइस दी थी कि आप या तो कोई पीपीटी बना के प्रेजेंट कर सकते हो या फिर कोई एक्टिविटी शो कर Yes, सकते ma'am. हो। Yes, हाँ, ma'am. तो Yes, ma'am. बहुत ज्यादा माइक ऑफ करो। तो लेट मी सी। मैम आपकी वॉइस थोड़ी स्लो स्लो आ रही है। बेटा द रूम इज चेंज टुडे ना, अभी आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. हाँ ओके, ठीक है बेटा। अभी चेरी, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. Ma'am, I am also ready. Okay, all the best to all of you. So Cherry Thank you, ma'am. yes, Cherry with you And will. my presentation is also ready. Very good, very good. Okay, so first Cherry, then Vedant, and then Pravanchika, right? Okay, ma'am. And then Okay, ma'am. Manav. And your time is Ma'am, of okay, ma'am. 5 minutes है आपका टाइम, उस पर ध्यान देना है आपको। Okay, मैम ma'am. मेरी भी तैयार है प्रेजेंटेशन। ओके आर्यन, 4th नंबर पे तुम प्रेजेंटेशन दे देना, ओके? ठीक है Ma'am, आर्यन? मेरी भी तैयार है. हाँ Ma'am, can I present? मैम मानव। बेटा अभी रुक जाओ, अगर स्केलेटन आ जाएगा तो इन 4 की प्रेजेंटेशन हो पाएगी, है ना? अगर स्केलेटन आ Ma'am, roll जाएगा number wise ले लीजिए. नहीं, रोल नंबर वाइज नहीं लूंगी मैं। हाँ ओके चलिए, यू स्टार्ट। मैंने तुम सबके नाम लिख रखे हैं तो मैं Okay, ma'am. ओके। Okay, ma'am. यस। Ma'am, can you see? इट इज कमिंग, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। Okay, ma'am. यस, वी कैन सी योर पीपीटी। Om Shri Sai Ram. Chapter 7, Getting to Know Our Plants. Presented by Cherry James. What are herbs? Plants with green and tender means soft stems and which are shortened from a height are called herbs. Example, tomato, potato, etc. Means जो प्लांट ग्रीन जिनकी प्लांट की ग्रीन स्टेम होती है और जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है वो हर्ब कहलाते हैं और वो हमारी हाइट से छोटे होते हैं। जो हमारी हाइट से प्लांट छोटे होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, जैसे टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा। What are shrubs? Plants which stem is hard but not very thick and it's about a height are called shrubs. Example, lemon, orange, etc. Means जो प्लांट जिनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है लेकिन ज्यादा थिक नहीं बट बहुत हार्ड होती है वो प्लांट श्रब्स होते हैं, और जिनकी हाइट हमारी मतलब लेवल की होती है वो श्रब्स होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। What are trees? Some plants are very tall and have hard and thick stems. The stems have branches in the upper part, much above the ground, are called trees. Example, neem, mango, etc. Means जो प्लांट होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जो बहुत हार्ड, उनकी स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड होती है और बहुत थिक होती है, वो ट्री होते हैं। और जिनकी जिनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो स्टेम के ऊपर होती हैं वो वो ट्री होते हैं, जैसे नीम, मैंगो एक्सेट्रा। What are creepers? Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. Example, pumpkin, watermelon etc. जो प्लांट्स जिनकी बहुत वीक स्टेम होती है और जो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते लेकिन वो जमीन पे फैलते हैं वो क्रीपर्स होते हैं, जैसे pumpkin, watermelon etc. Climbers. Plants who take support and climb up are called climbers. Example, money plant, etc. जो प्लांट्स होते हैं जो जो ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं, वो किसी सपोर्ट के सहारे वो ऊपर चढ़ सकते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट। थैंक यू। ओके, वेरी गुड।
Yes, Sherry, as you have explained about creepers, right? So, Yes, ma'am. you have given the example of pumpkin, watermelon. तो बेटा, what is the reason? एक मैंने आपको इसका reason भी बताया था कि why they grow on the ground only. वो support के मैम कारण क्योंकि उनके वेट बहुत होता है। किसमें weight बहुत होता है? मैम उनके जो फ्रूट्स होते हैं मैम उनका वेट बहुत होता है इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, very good, excellent. Okay. ठीक है बेटा, good explanation, good job. Ma'am, हाँ ma'am, can I present Vedansh? हाँ बेटा, I gave you the order ना, so after Yes, checking ma'am. only present, तो just wait, मुझे उसके साथ तो complete करने दो, उसका तो सारा हो जाए complete पहले. Okay. और मैंने जैसे आपसे कहा था कि if someone will be explaining, तो I can ask question to anyone else, right? Yes? Yes, ma'am. हाँ, okay. तो Yes, महिमा, ma'am. महिमा, Yes, ma'am. हाँ. What do you mean by shirts, बेटा? What? Shirts. Cherry, explain right now. Ma'am, sure. Yes. Yes. Shirts. What is the meaning Ma'am, of can I tell? No, no. No one will on the mic. Very good. प्रवंशिका, बोलो. बेटा आपको अगर आंसर देना है, देखो प्रवंशिका ने कैमरा ऑन रखा है, she is raising up her hand. Very good way to answer. Ma'am, what is spelling of shop? बेटा, it is given in your book. SHURPS. SH. और तुम मुझसे स्पेलिंग क्यों पूछ रही हो बेटा? ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो अब आना चाहिए. यस प्रवंशिका, चांस गई महिमा तुम्हारी. Yes, ma'am. Some plant develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. फॉर एग्जाम्पल स्केलेटन चलेगा ये. हाँ, यहाँ पे टांगना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को दिखाना था. मैंने कहा, या मैं खुद ही पकड़ के बता दूंगी. हाँ, अभी अभी दिख चल रही है क्लास, उसी में दिखा दूंगी. हाँ बेटा. And hibiscus. ओके. धवल, गिव वन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट्स. Yes, ma'am. Ma'am, lemon. ओके, वेरी गुड. मानव. मैम मेरा भी लेमन ही था. And blueberry. रुको. यस, मानव, गिव वन एग्जांपल ऑफ हॉर्स. Yes, मैम. हॉर्स का एक एग्जांपल दो. मैम हर्ब्स. मैम हर्ब्स का. हाँ. Yes, मैम. Ma'am, can I answer? नो. मानव, गिव वन एग्जांपल ऑफ हॉर्स. ओके, वेदांश, यू गिव. Ma'am, Tulsi. Yes, good. Devya, you give one example of herbs. Ma'am, jasmine. Jasmine. Herb में आएगा jasmine बेटा. Ma'am, herb का. हम्म. Ma'am, फिर है beet, tomato. Okay. ठीक है. Okay. Now Vedansh, you present your presentation. Yes, ma'am. नीम ट्री होता है महिमा. नीम का एग्जांपल कहाँ दे रही हो? Ma'am, Ma'am. I have shared. मैम सॉरी हूँ, मेरा नेट चला गया तो मैम मैं एग्जांपल दूँ. आपने हर्ब्स का बोला था ना. Ma'am, I have shared my screen. मैम हर्ब्स का एग्जांपल रेडिश हो Ma'am, सकता can है. you see? Okay. Yes. Okay, तन्मय. मैम Ma'am, can... रोज शर्ट्स होता है. हाँ. मैम आपने हर्ब्स का पूछा था ना एग्जांपल. हाँ, लेकिन मानव देखो, अब वेदांश प्रेजेंटेशन दे रहा है. अब वेट. Ma'am, can you see my screen? Yes, I can see your screen.
बेटा ओ एम ओम। Om Shri Sai Ram to all. I am Vidhan Shikhar and I am presenting a topic named photosynthesis. Okay. Now, what is photosynthesis? Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them, chlorophyll. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है. Okay. Process of photosynthesis in plant. During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and minerals into oxygen and energy-rich organic compounds. मतलब जो प्लांट होता है वो जो लीफ में से सनलाइट लेती है और फिर वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ना वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है बेटा. जो लाइट एनर्जी है वो यूज करते हैं और फिर वाटर और ये सब मिलके फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है ना. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. हाँ. यस, आगे बताओ. raw materials of photosynthesis. The raw materials of photosynthesis water and carbon dioxide are water and carbon dioxide and some other minerals. कैसे होता है फोटोसिंथेसिस बेटा? फिर से प्रीवियस स्लाइड. हाँ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा वो स्लाइड को प्रेजेंट करो. Yes, ma'am. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये जो पिक्चर तुमने ऐड किया है, दिस पिक्चर यू शुड एक्सप्लेन. Yes, ma'am. तो यहाँ पे ये जैसे कोई भी प्लांट है तो जब हम लोग इसके वाटर डालते हैं यहाँ रूट्स में तो वो रूट वाटर लेती है. उसके बाद जो सनलाइट से जो लीफ को जो सनलाइट मिलती है उससे फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मतलब छोड़ते हैं फिर वो उसमें कंडक्ट होके फिर वो ऑक्सीजन रिलीज होता है. और इस प्रोसेस में लीव्स जो होती है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है. ओके. फिर क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एंटर द सेल्स ऑफ द लीफ. लीफ के सेल्स में जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या बनता है? शुगर एंड ऑक्सीजन, है ना. यहाँ रिलीज होती है लीफ से. हाँ. ओके. Okay. Can anyone want to ask any question from Vedansh related to this photosynthesis? Devya, do you want to ask any question related to photosynthesis? Devya, are you there? Ma'am, can I? हाँ धवल. Why plants need food? Why? ये तो क्या क्वेश्चन हुआ बेटा? Why plants need food? Why do you eat food? Dhaval, now you answer only. Why do you eat food? मैम खाना खाता है तो मैम जीने के लिए. Means to survive we need to take food to get energy, है ना. Food gives us energy ना, and as well as other nutrients also which are required for our growth, our survival, right? तो बस सेम प्रोसेस प्लांट के लिए भी है. ये कैसा क्वेश्चन है? वो तो खाने से ही बढ़ जाते हैं. क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम they can also survive with water.
वाटर और इन सब का यूज करके ही तो फूड बनाते हैं। हमको दिखता है कि सिर्फ प्लांट जो है वाटर के वो सब हम जैसे सिर्फ पानी डालते हैं उसको भी जरूरत कर सकते हैं। वही बता रही हूँ बेटा, तुमने मतलब चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा। वाटरिंग जब हम प्लांट में करते हैं तो हमको दिखता है कि हम सिर्फ वाटर दे रहे हैं, लेकिन वाटर में भी कई मिनरल्स होते हैं और जो सॉइल है, रूट्स क्या करती है, उस वाटर और सॉइल के जो भी मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करके स्टेम को देती है और स्टेम वो सब लीव्स तक पहुंचाते हैं और लीव्स फिर जो है सनलाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके इन सब न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है प्लांट के लिए। ठीक है, तो प्लांट को भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, जैसे हमको चाहिए। ओके बेटा, आस्क एनी सेंसफुल क्वेश्चन, है ना, जिनमें कोई सेंस हो वो पूछो, सेंसलेस क्वेश्चन नहीं पूछना। चेरी, यू आस्क। Ma'am, I have a question. हाँ चेरी। Ma'am, what is light energy? Light energy means वेदांश। ना वो मतलब वो ऐसी एनर्जी होती है जो जैसे सनलाइट मिलती है तो वो एक टाइप की लाइट एनर्जी है। हाँ, यस। सनलाइट से जब हम लोग जैसे बाहर बैठते हैं धूप में तो हमें उससे विटामिन डी मिलता है, वैसे ही प्लांट्स को और भी बहुत से मिनरल्स मिलते हैं सनलाइट से। तो सन रेज के थ्रू जो एनर्जी मिलती है वो लाइट एनर्जी है ना। ओके ओके, गुड गुड प्रेजेंटेशन वेदांश, वेरी गुड। क्लैप फॉर चेरी एंड वेदांश। To whom I have given third chance, I think Pravanshika. Pravanshika? Yes, ma'am. हाँ बेटा, start your presentation. अच्छा रुको बेटा, Pravanshika wait. Now you people were waiting for skeleton. It has come. Just give one. हाँ तो तुम तो फोटो नहीं आएगा, गिर जाएगा। आपको काफी देर तक चाहिए ना, 5-7 मिनट ही चाहिए। मैं उसको पकड़ के फिर मैं क्या है Ma'am, can I present? Wait beta, I am going to show you skeleton. All of you just switch on your camera. चलो ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, मैं बता के रखूंगी। ओके, yes children, is it visible? One by one I will show you the parts. ठीक है, what is this? Face. Ma'am, skull. Head. Ma'am, skull. हाँ, आप चुप रहो जरा, ध्यान से सुनो। This is skull. आप देखो, जब मैं इसके जॉ का मूवमेंट, ये जॉ पे इस तरह से इधर जॉइंट होता है, ये अपर जॉ तो फिक्स होता है। दिस इज लोअर जॉ, ये देखो लोअर जॉ, ये खुल रहा है, मुंह बंद हो रहा है, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So lower jaw moves, as I told you, na, when we speak or when we eat, our lower jaw moves, but upper jaw is fixed. ये देखो, दिख रहा है? Big jaw is moving. ये skull lower jaw is Yes, moving. ma'am. देखो, ये जो shoulder bone है, ये वाली, ये देखो, ball and socket joint. Ma'am, your video is off. My video is on, beta. I can see. Ma'am,
मैम वो वीडियो में थोड़ी थोड़ी मैम अटक अटक के आ रही है। मैम ब्लर ब्लर हो रहा है। ध्यान से देखो, सुनो, ये बॉल की तरह होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर पे होता है। देन दिस इज रिब केज, ये रिब केज है पूरा, ये रिब्स अलग अलग साइड की है, वन साइड ये पिंजरे जैसी दिख रही है मैम, बैकबोन है। नाउ ये एट बैक साइड बैकबोन, मैम बैकबोन। ये है आपकी बैकबोन, है ना, और ये चेस्ट, ठीक है। फिर ये है तुम्हारा हिप जॉइंट, पिवोटल जॉइंट जिसको बोलते हैं ना, ये। अब यहाँ पे हिप से ही जैसे जो लेग्स का जॉइंट होता है, ये देखो ये लेग्स का जॉइंट, यहाँ पे भी तुम्हें बॉल जैसा दिखेगा, ये बॉल और ये कैविटी, ध्यान से देखो ये कैविटी है ना, और ये बॉल इसके अंदर ऐसे फिट होती है, फिर इस तरह से हमारा पैरों का मूवमेंट होता है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये देखो ये एल्बो में, यहाँ पर ये है हील जॉइंट। फिर ये तुम्हारे हाथ, फिंगर्स, फिंगर्स में डिफरेंट जॉइंट्स आर देयर। से हेलो, से हेलो, हेलो, हेलो। सेकंड, हेलो। ओके, यस, देन सी, ये दूसरे शोल्डर पे भी ये दिख रहा है बॉल जैसा, ये यहाँ कैविटी है, इस कैविटी में से होता है, और ऐसे 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 हमारा हाथ मूव होता है, ये है शोल्डर जॉइंट। अब ऊपर ये यस मैम। पिवोटल जॉइंट दिखा दिया, हिप जॉइंट दिखा दिया, ये है नी जॉइंट, ये नी पे भी कैसा होता है, हिंज जॉइंट, मेरे हाथ पे ध्यान से देखो, ये रहा हिंज जॉइंट। और फिर ये है तुम्हारा पंजा, पैर का पंजा, इसके जॉइंट, ये तुम्हारी एड़ी का जॉइंट, ये वाला दिस वाला, ओके, ठीक है बेटा। एक यहाँ ओके मैम। यस मैम। तुम लोग को दिखा यस, दी। थैंक यू मैम। Now it is saying bye to you. Bye bye. थैंक यू मैम। Friends, थैंक यू मैम। ये थैंक यू मैम। इसका ये भी फिक्स जॉइंट है, और तो पास से देखते तो इसमें मैं सब बता दूं। ये अपर जॉ फिक्स होता है, ये लोअर जॉ, फिर ये आईज के यहाँ पे दो बॉल्स हैं, फिर ये नोज पे भी यहाँ पर होल है, ये टिप। मैम मैम उसकी मैम स्केलेटन की गर्दन ऐसे से रोटेट हो रही है। हाँ हो रही है ना, ये हो तो रही है। यहाँ पे हमारा ये यहाँ हो सकती है। ये नेक का जॉइंट यहाँ से होता है, इसमें इस तरह से, है ना, यहाँ से जो हम कर पाते हैं, ठीक है, ओके। और रिब केज देखो, ये पिंजरे जैसा दिख रहा है ना, ये दोनों तरफ पे रिब्स हैं। इसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स होते हैं ना। मैम आपने कहा था ना एक तरफ वो क्या कहते हैं, एक तरफ टेल रहते हैं और दूसरी तरफ वो रहते हैं। मैम पूरे 24 होते हैं। यस मैम, टेल टेल साइड मतलब एक तरफ टेल होते हैं और फिर दूसरी तरफ टेल होते हैं। So this was all about skeleton. ये तुमको सारे जॉइंट्स मैंने इसमें skeleton में एक्सप्लेन कर दिए, ओके, ठीक है, मजा आया, करे तो नहीं? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। क्लास में होते थे तो छूने को भी मिलता। हाँ, ऑफलाइन क्लास में होते ना, तो मैं तुम लोग को आराम से एक एक जॉइंट अच्छे से तुम लोग को बताती, दो दो चार चार। मैम अभी अच्छे से क्लियर दिख भी नहीं रहा था। बेटा जितना मैं बता सकती थी मैंने यस मैम, लेकिन आपने अपनी पूरी वो मतलब कर दी, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। हाँ, वो जॉइंट अभी एक्चुअली क्या है ना बेटा, उसको हैंग भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, अगर ऊपर हैंग कर दूंगी तो तुम लोग को दिखाना मुश्किल होगा। अब एक हाथ से मैंने उसे पकड़ रखा है और एक हाथ से एक्सप्लेन, और वो हेवी भी है, इतना आसान नहीं है उसको एक तरह से ऐसे पकड़ के खड़े रहना। इससे क्या होगा, मूवमेंट में उतने अच्छे से नहीं, पर जितना मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती थी, जितना बता सकती थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, है ना। I hope you enjoyed and you understood also. Yes? यस मैम। यस मैम। Okay, चलिए. Yes, Pravanshika, now you continue बेटा. Yes, ma'am. हाँ, प्रवंशिका के बाद आर्यन को बोला है ना? यस मैम। ठीक है प्रवंशिका, स्टार्ट बेटा.
प्रवंशिका आर यू प्रेजेंटिंग बेटा? प्रवंशिका के बाद आर्यन की चांस है। आर्यन के बाद किसने पहले बोला था? मैम कहना है हाँ आफ्टर धवल आर्यन। बोलिए। ठीक है, धवल, धवल के बाद पुलकित। ठीक है, अभी देखते हैं कितने बच्चों का हो पाता है। ओके, प्रवंशिका आर यू देयर? मैम वो हो नहीं रहा, उसमें दिखा रहा है कि यू मस्ट ग्रांट परमिशन इन ऑर्डर टू स्क्रीन शेयर। ओके, तो अभी तुम्हें दिक्कत आ गई तो रुक जाओ, तुम थोड़ा इसके बाद ट्राई कर लेना। प्रवंशिका के बाद आर्यन को बोला था, तो आर्यन स्टार्ट प्रेजेंटिंग। मैम मैं प्रेजेंट करूं? हाँ, प्रवंशिका तब तक तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो बेटा, अपने उसमें तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही होगी। मैम दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ बेटा। ओम श्री साई राम। Hello, I am Aryan Bankar. I will show you a presentation on Chapter 8, Body Movements, topic Joints. What is joint? A part of the body where two bones fit together and are able to bend. Means एक ऐसा पार्ट जहाँ हमारी दो बोन्स एक साथ हो और वो अगल बगल मूव कर सके. The place where two or more things are fastened or connected together, especially to from a corner. Yeah, different joints are also there in your slide. Very good. इसको अगर zoom करके बता सको बेटा, जो previous slide थी, can you zoom it? The figure which you have shown in that. Yes, ma'am. हाँ हाँ, वेरी गुड। सी, अभी मैंने तुम लोग को बताया ये सारे शोल्डर वाला जॉइंट इस टाइप से था, ये कैसे कैविटी में फिट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिंगर्स के डिफरेंट जॉइंट, नीज में हिंज जॉइंट, ये सारा। ये देखो, ये जो यहाँ से हिप जॉइंट इस तरह से, ये लेग हिप्स के थ्रू पेल्विक बोन से ये इस तरह से अटैच रहता है, ये इस तरह से देखो, ये दिख रही है बॉल जैसी, और यहाँ ये कैविटी है। कैविटी मतलब होल, उसके अंदर वो फिट होता है और फिर बॉल की तरह मूवमेंट करता है। ये नी जॉइंट तुम देख सकते हो, ऐसे डिफरेंट जॉइंट्स आर देयर। ये रिब केज है एंड द सेम स्केलेटन इज गिवन इन योर बुक आल्सो। यस बेटा। Ma'am, can I show next slide? Yes. Yes, ma'am. There are many bones in our human body. There are 206 bones. There are many joints in our human body, like hinge joints of knee and pivotal joint. Okay. We discussed about pivotal joint. Pivotal joint help to move our head in 180 degree. Means जो pivotal joint होता है वो हमारी गर्दन होती है उससे 180 डिग्री में मूव करने के लिए मदद करता है. उसके बाद hinge joints of the knee. Movement at the elbow, but it illustrates the direction in which a hinge allow. जो हमारी एल्बो होती है हम उससे हिंज जॉइंट्स की मदद से मूव कर पाते हैं, पर जितना हिंज जॉइंट हमें अलाउ करती है हम बस उसे उतना ही राइट या कहीं पर भी घुमा सकते हैं. Fingers. You know, each of the finger has 3 joints which called metacarpal and gel, which is called in short form NCP. The joint of mouth. The joint of mouth is called temporomandibular joint, which is called in short form TMG. Or jaw joint is a biorthogonal hinge joint that allow the complex movement necessary for life. The TMJ is the joint between condylar head of the mandible and the mandibular fossa of the temporal bone. This system is made up of the TMG teeth and soft
टिश्यू मीन्स जो हमारा जॉइंट होता है, जो हमारे कान के थोड़ा पास होता है, ये वाला जॉइंट, वो हमारा माउथ, हम जब खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं तब ये हमको मुंह खोलने के लिए मदद करता है। और कान के ये थोड़ा पास में रहता है, कान के आगे थोड़ा उठा होता है, वही होती है ये जॉइंट। जब ये जॉइंट खुलता है तब एक स्पेस बन जाता है जिसे हम डिस्क कह सकते हैं, कॉन्ड्रेलर भी कह सकते हैं। एंकल जॉइंट, the ankle joint allow up and down movement of the foot. The subtalar joint sits below the ankle joints and allow side to side motion of the foot. तो हमारा एंकल जॉइंट रहता है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट वही होता है हमारा एंकल जॉइंट, जो हमें चलने में अपने पाँव को, मतलब अपने फुट को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। और जो ये वाला जॉइंट है सेप्टरल जॉइंट, ये हमारा थोड़े ही यहाँ कहीं पर पास होता है, वो हमारे अपने फुट को जो है वो राइट या लेफ्ट को मूव करने में मदद करता है। This is all joint of our body. ये हमारे सारे joints हैं हमारे बॉडी के, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। साई राम, थैंक यू। Okay, nice presentation. अच्छा। And now can I present? Yes, Pravanshika. मैम आई हैव अ डाउट। हाँ मैम आपने तो जब स्केलेटन दिखाया था तो मैम आपने कहा था कि वो पिवोटल जॉइंट वो हिप्स के पास है, और मैम वो इसमें तो उसके पास दिखा रहा है। गर्दन के वहाँ भी है ना, और बुक में देखो, बुक में लिखे हैं सारे इसके नाम, बुक में देख के बताओ मुझे। Ma'am, can you see my screen? मैम बुक में मैम पिवोटल जॉइंट मैम नेक के पास है, और मैम पेल्विक जॉइंट मैम हिप बोन के पास। हाँ ठीक है। Ma'am, can you see my screen? Yes. Ma'am, can I start? Go ahead. Sairam to all of you. Chapter 6, Changes Around Us. Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color, dry out. The flower bloom and then winter away. There are many changes in our body. Also, our nails grow. We grow taller and our weight increases as we grow. हमारे जो पूरे प्लेस में हमारे बहुत सारे चेंज रहते हैं जो होते हैं, वो अपने आप होते जाते हैं। जैसे कि फेल्ड्स में क्रॉप्स चेंज होते हैं, वो बढ़ती है तो टाइम टू टाइम, और जो लीव्स होता है वो फॉल गिरती हैं ट्रीज में से, एक वो चेंज होता है। और जो कलर ड्राई आउट हो जाता है, द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। There are many changes. हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंज रहते हैं। हमारे जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो होते हैं और हम खुद टॉल बढ़ते जाते हैं जैसे कि हम ग्रो होते हैं, और फिर हमारा वेट इंक्रीज होता है। Reversed change, the change which get back to the material with which we have started our activity. The change called reversible change. जो चेंज रहता है जिसे हम मटेरियल से फिर से वापस, जैसे कि बैलून को हम एक बार फुला लेते हैं तो फिर वो फिर से अगर हम उसकी हवा निकाल लेते हैं तो वो फिर से वैसा ही हो जाता है। तो ये होता है रिवर्स चेंज।
irreversible change. The change which cannot be get back to the material are called irreversible change. जो change गेट बैक नहीं होते, वापस से नहीं बनते, वो होता है irreversible change. जैसे कि हम जो चपाती रहता है हम उसे पका लेते हैं तो फिर हम उसे वापस फ्लोर में नहीं बदल सकते, तो ये होता है irreversible change. Expands. The iron blade of these tool has a ring in which the wooden handle. To fix the handle, the ring is slightly larger in size. Expands. Now the handle easily fits into the ring. जैसे जो रहता है उसका कुछ टूल्स रहते हैं, उनके जो हत्थे रहते हैं, उनके हत्थे को वले में फंसाने के लिए वले को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है वो. अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है. जब वला ठंडा हो जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है. थैंक यू. Okay, Pravanshika, that is as you have explained, when you iron it expands. What about if it is expanded, है ना? तो अगर वो expanded ही रहेगा, तो वो तो फिर हैंडल लूज होगा, फिर वो हैंडल फिक्स कैसे होता है? Please repeat. I cannot hear you. बेटा, when you heat the iron, it expands, right? Yes, ma'am. हाँ, ओके. तो पर इफ इट इज इन द एक्सपांडेड फॉर्म ओनली, तो जब तुम हैंडल फिट करोगे तो वो तो लूज रहेगा, फिर वो फिट कैसे हो जाता है एकदम? मैम कैन आई प्रेजेंट? वेट प्रणव. मैम जो रहता है हत्था, लोहे का हत्था रहता है, उसे गरम कर देते हैं. लोहे का नहीं, हैंडल तो वुडन रहता है. हम हीट करते हैं तो एक्सपांड तो होता है, लेकिन फिर भी एक्सपांड होगा तो वो तो फिर लूज रहेगी फिटिंग, वो एकदम अच्छा टाइटली फिट कैसे होता है? मैम उसे गरम कर देते हैं और फिर जब वो उसमें ठंडा, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा. यस, वो ठीक हो जाता है. यस, ओके. ओनली दिस आई वांटेड टू नो. गुड, नाइस प्रेजेंटेशन. नहीं बेटा, अब नाउ टुडे टाइम इज ओवर, इट्स 12:11 ऑलरेडी. मैम अगली क्लास में अब नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, तो जो ऑर्डर मैंने बता रखा है बेटा, इन दैट ऑर्डर यू पीपल शुड. यस मैम. मैम अगली क्लास में मेरी रहेगी प्रेजेंटेशन मैम, प्लीज. अगले क्लास में सबसे पहले मेरी रहेगी, क्योंकि प्रवंशिका के बाद मेरी. मैम थर्ड मेरी रहेगी. बेटा इस तरह से मैम आपके डबल मार्क. मैम आप ऐसे कीजिए, मैम आप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे नाम लिख दीजिएगा जो लोग का होगा. बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, मैं एक ही बात 10 बार नहीं बताऊंगी. और इस तरह से अगर आप इनडिसिप्लिन बिहेव करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं फिर प्रेजेंटेशन से मार्क्स कट करूंगी, अगर आप इनडिसिप्लिन रहोगे तो. फर्स्ट रूल इज यू मस्ट बी डिसिप्लिन. ओके चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना है आपको. और सबका प्रेजेंटेशन चलता है, किसी का भी, तब बीच में नहीं बोलना है. धवल की चांस है नेक्स्ट इसमें फर्स्ट, और धवल के बाद मैंने एक दो बच्चों को और कहा है. धवल के बाद किसको कहा है? धवल तुम बताओगे. मैम मेरे बाद पुलकित की आनी थी. पुलकित को कहा था. पुलकित तुम बताओ, तुम्हारे बाद किसी को कहा है? नो मैम. मैम डन. पुलकित के बाद कैन आई करने वालों को जो बोलेंगे माइक ऑन करके, उन्हें नई चांस मिलेगी, पहले उनको सबसे लास्ट में मिलेगी. पुलकित के बाद अनुभा करेगी, अनुभा के बाद विराट, और विराट के बाद में दिव्य, और दिव्य के बाद मानव. ये ऑर्डर अभी मैंने इतने बच्चों का बता दिया. इतने बच्चों को ऑलमोस्ट हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. और बेटा मैं फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने को भी बोलूंगी और ये भी बोलूंगी, तो यू पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड. तो नाउ यू कैन, we will conclude today's class with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti.
Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Stay happy. Sairam ma'am. Sairam ma'am. And Family. leave.